दुख परे आनंद को पा, ध्यान लगा समाधि में जा, सुख दुख परे आनंद को पा, ऐसे जीवन की कामना करो। योगमयं विश्वं कर्म भक्ति ज्ञान योग से पावत, तन मन में ऊर्जा चेतना जागत, हठल राजयोग देत सुदृढ़ शरीरा, दूर करे ईर्षा द्वेष विस्मय की पीड़ा, निरोग अंत मन तन को करो। योगमयं विश्वं कुरु, विश्वं कुरु। चिंता से मुक्ति, कार्य में कुशलता, उत्साह संग संग चलने की योग्यता, आत्मविश्वास आत्मनियंत्रण योग से होगा। वसुधैव कुटुम्बकं, वसुधैव कुटुम्बकं, वसुधैव कुटुम्बकं। ऐसी धरा की कल्पना करो। योगमयं विश्वं कुरु, 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 विश्वं कुरु। सुबह की पहली किरण दिल को छू जाती है, महकते फूलों की महक दिल में जादू सा जगा जाती है। बरखा की रुत, आजकल बारिश हो रही है खूब, बरखा की रुत में ये सोंधी सोंधी माटी की खुशबू मन को खिला जाती है। हर रोज सुबह में ये योग गीत से तन मन में एक नई उमंग सी जाग जाती है। A very energetic good morning to everyone present here. As we know that this COVID pandemic has shown its effect on us at different times and different ways in this world. We have lost many precious lives. Many are suffering and struggling with mental illness. But वो कहते हैं ना कि तेज हवाओं से हमारे रिश्ते तो पुराने हैं, पर चिराग तो हर हाल में जगाने हैं। Keeping this in mind, Dr. Gopal ji has taken great initiative to conduct this month-long workshop to train the brain. He and his team spread awareness about various alternative therapies and strengthened mental and physical power of every one of us. We all know that till date no medical treatment is available, but we can take pride on our ancient scientific and natural therapies, and above all that is Ayurveda. And we all are very lucky that today we have with us Dr. Marunal Tiwari, Ayurvedacharya.
She is BA, MS, MD, Ayurveda. Ved Marunal is a postgraduate in two subjects of Kaya Chikitsa and Agar Tantra. Now she is pursuing for PhD. She is currently working as a professor and clinician. She has a wide experience of 20 years treating patients of Vata disorder, infertility, diabetes, and many more. She has a rich experience in Panchkarma therapy management, and her expertise is also treating patients of IT background who are suffering from depression and obesity. She is a yoga expert and has won many accolades at the national level competitions. She has been invited by the military camp for conducting yoga classes for their family members and military cantonment areas at Aon Camp, Pune. Such brilliant Ayurveda is among us. I, on the behalf of all the participants and the team of Global Yoga Alliance, welcome you, ma'am. Now, all stage is yours. Please take the charge. Thanks for coming here. जी मैम. Thank you, ma'am. I thank Global Yoga Alliance and Gopal sir for giving me an opportunity to present my views, also Ayurveda to a lot of people. So let us start with the Ayurvedic diet. Let me share the screen. Can you see the screen? No, ma'am. मैम. Okay. स्क्रीन में आप अमन जी देख रहे हैं, स्क्रीन में क्या प्रॉब्लम है कुछ? Shall I share, ma'am? Yeah, you can share. Okay. You continue. I will share, ma'am. Okay. So, beginning with what is Ayurveda? आयुर्वेद क्या है? तो ये एक वेद का उपांग है, हमारे वेदों का उपांग आयुर्वेद है, और इसमें हमारे जीवन के बारे में बहुत सारी जानकारी हमें मिलती है कि किस प्रकार हमें हमारा जीवन व्यतीत करना चाहिए, जैसे कि हमारी दिनचर्या कैसी रहनी चाहिए, हमारी ऋतुचर्या कैसी रहनी चाहिए, किस तरह से हम अपना जीवन व्यतीत करें, हमारा व्यायाम किस प्रकार का रहना चाहिए, आयुष्य यानी आयु के बारे में बहुत सारी जानकारी हमें आयुर्वेद से मिलती है। इस पूरे आयुर्वेद में हमें सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है आहार के बारे में। तो आहार हमारा किस तरह रहना चाहिए, इसके लिए हमें उपलब्ध जो जानकारी है उसी के बारे में आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज डाइट, कंसेप्ट ऑफ डाइट। तो ये डाइट क्या है हमारे लिए? तो दिस इज गोइंग टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू आवर बॉडी एज वेल एज माइंड। जिस तरह हम खाना खाते हैं उसी तरह से हमारा शरीर बनता है, और इसी आहार की वजह से हमारे मन का भी पोषण होता है और हमारे बुद्धि का भी पोषण होता है। ऐसा कहा गया है कि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन।
तो जिस प्रकार का आहार हम सेवन करते हैं उसी से हमारे मन का पोषण होता है और हमारा जो मानसिक संतुलन है, तो ये इनडायरेक्टली इट इज डिपेंडेंट अपॉन द डाइट व्हाट वी ईट। सो हेल्दी डाइट इज रिकमेंडेड फॉर ऑल, लेकिन डाइट हेल्दी क्या है और हमें किस तरह इस आहार का सेवन करना चाहिए, तो इसी के बारे में आज मैं आपसे चर्चा करूंगी। तो जब भी हम खाना खाते हैं तो हम ये सोच में पड़ते हैं कि मुझे किस प्रकार का खाना खाना चाहिए या मेरे लिए सही क्वांटिटी कौन सी रहनी चाहिए, ये हम सोचते हैं। और लगभग सभी को ये रहता है कि वी डोंट नो व्हाट क्वांटिटी ऑफ डाइट इज सफिशिएंट फॉर मी, और हम कितना खाना खाएं, ये हमारे प्रश्न रहते हैं। तो जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारे खाने में हैवी फूड रहते हैं और लाइट फूड, यानी गुरु द्रव्य और लघु द्रव्य, ऐसे दो प्रकार के आहारीय द्रव्य हम सेवन करते हैं। तो ये आहारीय द्रव्य जब सेवन करते हैं तो इनकी सही मात्रा हमारे आहार में रहना जरूरी है ताकि वो अच्छे से उनका पचन हो जाए। तो ये जो आहारीय द्रव्य है, जब भी हम इनका सेवन करते हैं तो अगर ये आसानी से पच जाते हैं या फिर इनका डाइजेशन हो जाता है, तो वही हमारी सही मात्रा है हमारे आहार की। यानी मात्रा निर्धारण ये हमारे ऊपर ही है। हर एक की मात्रा एक नहीं रहेगी, हर एक की मात्रा अलग अलग रहेगी। यानी क्वांटिटी ऑफ फूड व्हाट वी हैव इज डिफरेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल। ऐसा नहीं है कि दो व्यक्ति खाने बैठे हैं और उनका खाना लगभग एक ही रहेगा। तो इन जनरल भी बोलते हैं कि 2-3 पराठे और थोड़ा सा राइस, दाल, सब्जी हम खा लेते हैं, लेकिन हर एक के लिए वो क्वांटिटी सफिशिएंट है ऐसा नहीं है। किसी के लिए वो ज़्यादा है, किसी के लिए सही है और किसी के लिए वो कम भी हो सकती है। तो अगर दूसरे आहार काल तक अगर यह मात्रा हमारी आसानी से पच जाती है तो वह हमारे लिए सही मात्रा है। समझो आपने खाना खाया और आप शाम का खाना खा रहे हैं, उस समय तक अगर आपको भूख नहीं लग रही है तो आपने ज़्यादा खाना खाया है, ऐसा आप समझ लेना चाहिए। तो दूसरा आहार काल कौन सा है? हमारे आहार काल 2 ही बताए गए हैं, एक प्रातः काल और सायंकाल। प्रातः काल आप जब भी लेते हैं तो मॉर्निंग टाइम का जो बताया गया है वो लगभग 10 to 1 o'clock तक आप खाना खा सकते हैं, और शाम में जब आप खाना खाते हैं या डिनर बोल सकते हैं तो वो 6 to 8 इसके बीच में आपको खाना खाना है। लेकिन ऐसा होता है कि हम ये खाने के जो हमारे टाइम है दैट वी कैन नॉट मेंटेन, और ड्यू टू आवर फास्ट लाइफ आप या बोल सकते हैं जो बिजी शेड्यूल रहता है उसकी वजह से हम वो टाइमिंग हमारा मेंटेन नहीं कर पाते। बहुत सी बार ऐसा होता है कि ये खाने के जो टाइमिंग्स है या फ्रीक्वेंसी है ये बढ़ जाती है। कभी कभार 2 से बहुत ज़्यादा बार हो जाता है, जैसे कि सुबह का ब्रेकफास्ट हो गया और शाम में फिर से 4 o'clock को हम खाने की कोशिश करते हैं, या स्नैक टाइम बोल के हम बहुत सारी चीज़ें लेते हैं। तो एक्चुअली दैट इज़ not recommended. There are only two food timings. One is morning and the second one is evening time. Next slide. So what happens if we take excess food or less food? अगर हम ज़्यादा मात्रा में आहार लेते हैं या कम मात्रा में लेते हैं तो इसका परिणाम हमारे शरीर पर क्या होता है, यह जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपका मन का बना हुआ या फिर आपका पसंद वाला खाना अगर बन जाता है तो आप कहेंगे कि मैं बहुत ज़्यादा खाना खा लूँगा, ये फिर से वैसा नहीं बनेगा, या फिर इफ़ यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल सो यू हैव एक्सेस फूड। तो ये एक्सेस फूड आपके लिए क्या हानिकारक, किस तरह हानिकारक रह सकता है? तो इट डिस्टर्ब्स द हार्मनी विच इज़ प्रेजेंट इन योर बॉडी। हमारे शरीर के अंदर 3 प्रकार के दोष है, वात, पित्त और कफ। इन तीनों दोषों की समस्थिति जो है वो इस एक्सेस आहार या ज़्यादा मात्रा में जो आहार लेते हैं उससे बिगड़ जाती है और हमारे शरीर में रोगों की उत्पत्ति के कारण बन जाते हैं।
तो जब भी खाना खाते हैं तो ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि हम एक्सेस खाना ना खाएं। अब ये एक बात हो गई, और दूसरी बात ये है कि जब भी हम ओबेस पर्सन या फिर जिनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है या जिनका मेद बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, वो लोग डाइटिंग की तरफ झुकते हैं। और इन लोगों का ऐसा मानना रहता है कि मैं कम खाऊंगा या फिर कम खाऊंगी तो मेरा वेट कम हो जाएगा और मे बी आई विल बी थिन। तो इस तरह से सोचने से क्या होगा कि आप कम खाना खाते हैं, लेस डाइट, वॉट एवर रिक्वायर्ड क्वांटिटी में आप जो खाना खाना चाहिए वो ना खाते हुए आप क्या करेंगे, कम खाना खाते हैं। और जिसकी वजह से बहुत सारा हमारा शरीर के जो शरीर की शक्ति है वो कम हो जाती है और अनेक प्रकार के वात व्याधि हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। ये वात व्याधि बहुत डिफिकल्ट है मैनेज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू टेल कि जो भी डीजनरेशन हमारे बॉडी का होता है वो वात की वजह से ही होता है। जैसे कि डिजनरेशन ऑफ स्पाइन, डिजनरेशन ऑफ बोन, ऑस्टियोपोरोसिस, ये सभी जो डिजनरेटिव चेंजेस है दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ वात। तो ये वात अगर ना बढ़े हमारे शरीर में तो इसके लिए क्या खाना है, हमें सही मात्रा में आहार की आवश्यकता रहती है। शरीर में बहुत सारे हमारे प्रक्रिया शुरू रहते हैं, जो मेटाबॉलिज्म शुरू रहता है और लाइफ प्रोसेसेस हमारे शरीर में निरंतर शुरू रहते ही हैं। तो इन सबको मेंटेन अगर हमें करना है तो सही मात्रा में आहार की आवश्यकता तो सभी को रहती ही है। और जो लोग शारीरिक कष्ट अधिक करते हैं उनके लिए आहार की मात्रा थोड़ी ज़्यादा बताई गई है। साथ ही उनको स्निग्धाहार यानी फैटी फूड भी उनके लिए निर्देश दिया गया है। तो so you should be having keen eye whenever you're having food, that you are not going to eat in excess or you are not going to eat in less quantity। ये दोनों भी अपने हाथ से नहीं होना चाहिए। एक सम मात्रा में आहार सेवन करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड। इसके बाद में अभी आहार की मात्रा आपके अगर ध्यान में आ गई है तो कुछ आहार के बारे में हमारे जो अपत्य होते हैं वो भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ये अपत्य क्या है, ऐसा सोचे तो जो भी पदार्थ शरीर में जाने के बाद अगर आपको विदाह यानी एसिडिटी फील होता है या फिर पचने में दिक्कत होती है या फिर शरीर में कोई पीड़ा आ जाती है तो ये सभी आपके लिए अपत्य है। प्रकृति अनुरूप भी कुछ पथ्य और अपथ्य बताए गए हैं। जैसे कि अगर पित्तज प्रकृति है आपकी और आप अगर हॉट स्पाइसी डाइट खा रहे हैं तो वो भी आपके प्रकृति के विरुद्ध है और इसकी वजह से अनेक प्रकार के आपके शरीर में व्याधि उत्पन्न हो जाते हैं, व्याधि यानी डिसीज। सो आपके प्रकृति अनुरूप भी आपको खाना जरूरी है। जैसे कि वात के प्रकृति के व्यक्ति को उनको स्निग्धाहार और कम मात्रा में आहार खाना जरूरी है। कफ प्रकृति में मात्रा अल्प रहेगी लेकिन उनके आहार में स्निग्धाहार ज्यादा नहीं रहना जरूरी है। तो खाना खाते समय और पथ्य भी बोला गया है कि शमशन, अध्यशन और विषमाशन, ये 3 प्रकार के मिथ्या आहार हमें नहीं करना है। यानी शमशन ये क्या है, तो हम पथ्य आहार और अपथ्य आहार एक साथ मिलाकर खा रहे हैं तो उसे हम शमशन कहते हैं। सम अशन यानी दोनों अच्छी चीज और बुरी चीज एक करके हम खाना खा रहे हैं तो उसे हम शमशन कहते हैं। दूसरा है खाए हुए अन्न के बाद फिर से खाना खा लेना। जैसे कि अभी आपने खाना खाया है और तुरंत किसी ने ऑफर कर दिया कि चलो आज जामुन बने हैं, गुलाब जामुन बने हैं, आप ये खा लो, या स्वीट डिश बनी है तो आप ये खा लो। तो ईटिंग अगेन एंड अगेन इज अध्यशन। आपके आहार के टाइमिंग्स मैंने बताए थे कि दो ही है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 बार आपके आहार के फ्रिक्वेंसी रखना चाहेंगे। तो इसके अलावा आप जो भी खाते हैं तो वो सभी अध्यशन में आ जाता है। अध्यशन यानी फिर से खाना। बार बार आते जाते हुए भी आप अगर टेबल पर
रखी हुई चीजें बार बार खाते हैं तो उसे भी हम अध्यशन कहेंगे। तो ये सभी हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। अगर ऐसे स्नैक्स और अदर चीजें आपको खाने की इच्छा हो रही है तो ऐसे समय पर आपको क्या करना है, तो जब खाना खा रहे हैं तब आप उन सारी चीजों को भी खा सकते हैं। तो you have to make it a point that whenever you are going to have food, you include all the items what you want to eat. ऐसा नहीं है कि अभी मैंने खाना खा लिया और 1 घंटे के बाद फिर से मैं कुछ खा रहा हूँ, तो दिस इज गोइंग टू बी हार्मफुल टू योर बॉडी। इसके बाद में विषम आसन। विषम आसन क्या है, तो असमय में बहुत या बहुत कम खाना खाना। अभी असमय समय दो ही बताए गए हैं। अभी असमय यानी आप सब दोपहर का खाना अगर आप शाम में खा रहे हैं, 4 बजे के बाद खा रहे हैं, तो ये तो असमय हो गया। और इस समय में अगर आप बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हैं तो भी अपनी जो डाइजेशन सिस्टम है वो उसको पचा नहीं पाएगी, या फिर जो हमारा अग्नि है वो इसको पचन नहीं कर पाएगा। या फिर ऐसे समय पर अगर आप कम मात्रा में खाना खा रहे हैं तो भी ये दिक्कत ला सकता है। सो दिस शुड बी अवॉइडेड। अभी रात के खाने के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहूँगी कि बहुत सारे लोगों को ऐसा रहता है कि ऑफिस के आने के बाद 9 बजे के बाद, 10 बजे के बाद, या फिर टीवी देखते देखते 12 बजे तक भी लोग खाना खाते हैं। तो ये सभी खाना, ये दीज हैबिट्स आर नॉट गुड इन लॉन्ग टर्म। सो ये जो हम इस प्रकार का खाना खाते हैं तो उसकी वजह से जो पोषण तत्व हमारे शरीर में आने चाहिए या फिर हमें उनका उपयोग होना चाहिए वो नहीं होता है, और वी आर deficient in spite of eating all the good items in our food. So I would like to recommend, so whenever you're having food, you eat it mindfully. आप खाने को देख के और समझ के खाइए। जितना आपको नेसेसरी है आप उतना ही खाना खाना है आपको, और try to avoid excess and stop eating again and again. So these are the simple things which we should follow, and in long term these are going to give you good health, as well as mental health is also maintained because of this kind of diet. Next slide. अब भोजन करते समय किस तरह हमें आहार को लेना चाहिए या भोजन करना चाहिए। इस आहार की वजह से हमारा शरीर है, हमारा मन का पोषण हो रहा है, हमारे बुद्धि का पोषण हो रहा है। तो ये आहार हमें किस तरह लेना चाहिए, तो इसके लिए भी हमारे शास्त्र में बताया है कि जो भी मन के अनुकूल हो ऐसा आहार हमें लेना है, जो पवित्र है यानी जो शुद्ध है, जो हमारे शरीर में हितकारक परिणाम लाने वाला है, ऐसा आहार जो स्निग्ध है। देखिए यहाँ पे रुक्ष आहार के लिए हमारे यहाँ मनाही है, यानी dried items are not actually recommended, and we should have snigdha ahar, that is having oleation properties like butter, milk, घी, ये सभी हमारे खाने में आना ज़रूरी है। खाना गर्म रहना ज़रूरी है और खाना लाइट भी रहना ज़रूरी है। बहुत हेवी फूड वी कैन नॉट हैव इट। षटरस युक्त आहार कहा गया है। षटरस यानी 6 प्रकार के जो रस है, जैसे मधुर, आम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये 6 प्रकार के रस बताए गए हैं, और इसमें से भी मधुर रस बहुल यानी मधुर रस अधिक मात्रा में हमारे आहार में रहना जरूरी है। खाना खाते समय और एक बात यह है कि बहुत जल्दी ना खाएं और बहुत धीरे से भी ना खाएं। खाना खाते समय ये ध्यान में रखें कि आप स्नान करके ही खाना खाएं, उसके खाना खाने के बाद स्नान ना करें। तो ये जो विधि है वो विधि के अनुसार ही आपको खाना खाना ज़रूरी है। भूख लगने पर ही खाएं। अगर भूख नहीं लग रही है तो आप थोड़ा सा रोक सकते हैं और उसके बाद खाना खा सकते हैं। खाना खाने के पहले आपको हाथ, पैर, मुख धोकर ही आपको खाना खाना ज़रूरी है। अभी का जो सिस्टम और जो फैड है उस तरह से आप अगर खाना खाएंगे तो ये शरीर का बिल्कुल भी पोषण नहीं करेगा। तो खाना के जो
खाना खाने के जो नियम हैं उनको पालन करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो उत्तम आहार किसे कहा गया है? जो संतुलित है, जो बैलेंस डाइट है, जिसमें 6 रस उपलब्ध हैं और आहार विधि जो बताई गई है उस नियम का पालन करते हुए हम अगर आहार सेवन कर रहे हैं तो वह उत्तम आहार है, हमारे प्रकृति के अनुरूप है। अपनी प्रकृति पहले आप जान लो कि आपकी प्रकृति क्या है, यानी आपके कॉन्स्टिट्यूशन के लिए क्या सही है और क्या गलत है, ये आपको जानना जरूरी है। मात्रा पूर्वक आहार करें, ध्यान पूर्वक खाना, माइंडफुल ईटिंग, मौन रखते हुए, बहुत सारी बातें नहीं करनी चाहिए खाना खाते समय, मौन रखना जरूरी है। हमारे स्वास्थ्य का उद्देश्य रखते हुए हमें खाना खाना है। ये जो मैं खाना खा रहा हूँ या खा रही हूँ, इससे मेरा स्वास्थ्य बनने वाला है और मैं इसे अच्छी तरह से चबाते हुए और ध्यान पूर्वक मैं इसको खा लूँ, ये आपका नजरिया रहना चाहिए। जब हम खाना खाते हैं तो ये ध्यान में रखना जरूरी है कि मैंने जो पहले खाया हुआ है अन्न, उसका पचन हो गया है या नहीं, इसको देखना भी जरूरी है। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर मैंने कल शाम को बहुत सारा हेवी डाइट लिया है और मुझे आज भूख नहीं लग रही है, तो यू नीड टू हैव वेरी लाइट डाइट इन दैट पर्टिकुलर टाइमिंग। ऐसा नहीं है कि कल मैंने बहुत खा लिया, अभी आज भूख नहीं है तो मैं फिर से भर लूँ अपना पेट। अगर आप ऐसा करते हैं तो यू आर जस्ट डिस्टर्बिंग द होल डाइजेस्टिव सिस्टम। आप उसको कोलैप्स भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या है, कभी कभार लूज मोशंस होते हैं, एसिडिटी हो जाती है, बहुत सारे लोगों को नौशिया रहता है, रुल्लास बोलते हैं, वो भी आ जाता है। तो पहले खाया हुआ अन्न पचना बहुत ज़रूरी है और नियमित तौर पर खाने योग्य पदार्थों को ही सेवन करना आवश्यक है। समझो कभी कभार आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मैं जंक फूड खा लूँ। एक्चुअली एक ये बात तो ध्यान में रखना ज़रूरी है कि जब भी आहार बनाते हैं, जो हमारा ट्रेडिशनल डाइट है वो उसके ऊपर बहुत सारे संस्कार होते हैं और जो बहुत सालों से चला है तो वो नेचुरली हमारे शरीर के लिए हानिकारक है ही नहीं। लेकिन फास्ट फूड, तुरंत खाना बनाने की कोशिश हम करते हैं, या फिर जो हमारे टंग के लिए ये है, इट इज़ गोइंग टू मेक यू फील दैट आई शुड हैव दैट सच काइंड ऑफ फूड। आपको ललचाता है कि ये खाए वो खाए, लेकिन ये सभी आहार क्या है, हमारे शरीर में विदाह उत्पन्न करते हैं, शरीर का जो स्ट्रेंथ है वो कम कर देते हैं। तो इनसे बचना बहुत ज़रूरी है। वंस इन अ वाइल यू कैन हैव इट, बट नॉट ऑन अ रेगुलर बेसिस। नेक्स्ट स्लाइड। तो अभी त्याज्य भोजन कौन सा है जिसे हमें त्याग कर देना चाहिए? जिस आहार में अगर केश है, किसी प्रकार के तिनका या जो बारीक दानेदार आप चीज आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसा खाना आपको नहीं खाना है। बहुत गर्म खाना भी नहीं खाना है और अति लवणयुक्त यानी बहुत सॉल्टी डाइट हो गया है तो उसे भी आपको नहीं खाना चाहिए। इट इज गोइंग टू क्रिएट disturbance in your body, so you should avoid having very salty diet. तो कभी कभार ऐसा हो जाता है बनाते समय कि थोड़ा सा उसमें नमक ज़्यादा गिर जाता है, तो ऐसे वक्त पर वो ना खाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, या फिर उसको थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़े तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी बताई गई हैं उन्हें नियमित तौर पर हम खा सकते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी बताई गई हैं कि उन्हें आपको नियमित तौर पर यानी डेली यू शुड नॉट बी कंज्यूमिंग सच काइंड ऑफ फूड। तो ऐसी चीज़ें कौन सी हैं? तो वन इज कर्ड्स। आप कर्ड्स डेली नहीं खा सकते हैं। अनकुक्ड रेडिश, ये भी आप डेली नहीं खा सकते। उड़द दाल, स्प्राउट्स, ड्राइड वेजिटेबल्स, ये सभी आपको डेली बेसिस पर नहीं खाना है। Once in a while you can have these items, but not on a regular basis. Next slide. तो रेगुलर बेसिस पर हम क्या खा सकते हैं, डेली डाइट में हमारा क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले है हम जो
गेहूं यूज़ करते हैं वो अच्छा है, जव यूज़ कर सकते हैं, राइस, ग्रेप्स, परवल, परवल की सब्जी आती है, छोटी परवल और बड़ी परवल, ये दोनों आप खा सकते हैं। मूंग दाल, चंदन बथुआ, ये एक वेजिटेबल, लीफी वेजिटेबल है, इसका भी आप सेवन कर सकते हैं। शुगर, घी, मिल्क, पोमोग्रेनेट, दीज आर वेरी गुड आइटम्स। पोमोग्रेनेट उसको भी सबसे पथ्यकर ऐसा फल कहा गया है। सेंधव को आपको डेली यूज करना है। अगर आप समुद्र सॉल्ट या फिर आप अगर सी सॉल्ट यूज कर रहे हैं तो उसको अवॉइड करना ज़रूरी है। और हमारे परंपरा के अनुसार हम जो यूज कर रहे थे पहले से, सेंधव नमक, उसका इस्तेमाल होना हमारे आहार में बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो कोई भी अपाय नहीं करेगा और लॉन्ग टर्म में आपके आँखों के लिए और आपके पूरे हेल्थ के लिए सेंधव नमक बहुत ही उपयुक्त है। अभी उसको बहुत सारा प्रमोट किया जा रहा है क्योंकि उसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं। सो यू शुड बी हैविंग सेंधव सॉल्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस। द सेकेंड इज हरड़ा एंड आंवला। आंवला ये भी आपको डेली कंज्यूम करना ज़रूरी है। हरड़ा हमारे शरीर में जो भी दोष है या फिर कुछ टॉक्सिन्स है तो वो निकालेगा। और आंवला हमारा रसायन कार्य करता है, रसायन दोनों भी है, वैसे रसायन कार्य करते ही हैं। रसायन यानी हमारे शरीर के धातुओं को पुष्ट करते हैं। वी हैव गुड एनर्जी आफ्टर ईटिंग these items. So harda and amla both are very good for consuming on a daily basis. For having good vision, आपके आँखों की रोशनी अच्छी तरह से रहे, इसके लिए आयुर्वेद में त्रिफला और घृत, इसको रात में खाने के लिए सलाह दी जाती है। त्रिफला और घृत ये आप वैद्य की सलाह से लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन यू शुड बी नोइंग दैट these things are good for your vision. नेक्स्ट स्लाइड। तो आपका डेली रेजिम कैसा रहना चाहिए, डाइट रेजिम कैसा रहना चाहिए, किस ऑर्डर में आप खाना खा सकते हैं या खाना चाहिए आपको। तो हमारे आहार में हेवी फूड रहते हैं या तली हुई चीज़ें रहते हैं या फिर स्वीट आइटम्स रहते हैं, फ्रूट्स रहते हैं। तो ये सभी जो है इनको आपको सबसे पहले खाना है। खाने का एक क्रम बताया गया है, उसी क्रम से आपको जाना चाहिए। पहले तो आपको सबसे पहले आपको हेवी फूड खाना ज़रूरी है। जो भी आप फॉर एग्जांपल भजे हैं या फिर पूरी है या कचौरी है, ये अगर आप अपने खाने में खा रहे हैं तो इसको सबसे पहले खाना ज़रूरी है। साथ ही जो भी स्वीट आइटम्स हैं उनको भी एट फर्स्ट यू शुड बी हैविंग देम, बिकॉज नाउ वी आर हैविंग अ ट्रेंड ऑफ ईटिंग ऑल द हेवी फूड आफ्टर द फूड। जैसे कि हम बोलते हैं डेजर्ट है, वी ईट आइसक्रीम, वी ईट स्वीट डिशेज एट द एंड, बट एक्चुअली दे शुड बी ईटन एट द फर्स्ट। उनको फर्स्टली कंज्यूम करना बहुत ज़रूरी है। जो भी फ्रूट्स हैं, आम खा रहे हैं या फिर केला खा रहे हैं, तो ऐसे सब जो हेवी फूड है उनको आपको सबसे पहले खाना ज़रूरी है। और उसके बाद में जो भी लाइट आइटम्स है, ड्राई आइटम्स है, स्पाइसी आइटम्स है, उनको बाद में खाना है। और जो चीज़ें खट्टी है, सार है या फिर जो सॉल्टी है, उनको खाने के बीच में आपको उनको रखना है। सो यू शुड बी नोइंग heavy items at the first, sweet items at first. In the middle you have to keep sour and salty food, and at the last you should be having light food, dry and spicy food. So जो भी तीखा खाना है आपको लास्ट में रखना है। नेक्स्ट स्लाइड। तो प्रमाण ऑलरेडी हम थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी खाना खाते समय आपको इमेजिन करना है आपके डेली आप जो फूड लेते हैं उसके हिसाब से आपके स्टमक के अगर आप 4 पार्ट्स करेंगे, सो यू इमेजिन that you are going to make 4 parts of your stomach, and in that 2 parts you are going to fill with food. 1 part you are going to have liquid food. It may be in the form of buttermilk, or you may be having water, or you may be having soups. So 1 part of your stomach should be having liquid and 1 part should be left unfilled for the digestion process. तो ये एक पार्ट आपको आपके डाइजेस्टिव मूवमेंट्स के लिए
खाली रखना ज़रूरी है। जैसे कि स्टमक का जो एक्शन है डाइजेशन के समय पर, तो उसके लिए कुछ तो आपको स्पेस रखना ज़रूरी है। तो थोड़ा-सा पूरा तृप्ति के साथ आप ना खाएँ, थोड़ा-सा उस तृप्ति के नीचे के लेवल पर आपको खाना है, यानी होली यू शुड नॉट बी सैटिस्फाइड, थोड़ा-सा कम लेवल पर आपको खाना खाना है। एंड जब भी आप खाना खाने के बाद पानी पीते हैं तो थोड़ा-सा ही पानी पिए। बटर मिल्क ले सकते हैं, वार्म वाटर ले सकते हैं। अभी हर एक के प्रकृति के अनुरूप आपको उसका संतुलन करना ज़रूरी है। खाना खाने के बाद जो हम थोड़ा-सा पानी या फिर गर्म पानी पीते हैं, उसकी वजह से हमको सैटिस्फैक्शन आता है, वी गेट स्ट्रेंथ एंड ऑल्सो इट हेल्प्स इन डाइजेशन। सो ओनली ड्राइड फूड ऐसा खा के हम अगर कुछ भी पानी नहीं पीते तो भी वो हानिकारक रहेगा। खाना खाने के बाद थोड़ा-सा पानी पिए और आपके पूरे मन से अगर आपको ज़्यादा पानी पीना है तो यू नीड टू वेट फॉर हाफ एन आवर। हाफ एन आवर के बाद आपको यथेच्छ आप पानी पी सकते हैं। तुरंत पानी, बहुत सारा पानी पीना ये शरीर के लिए हानिकारक है। खाना खाने के बाद और क्या करना है आपको, तो हम मराठी में शतपावली बोलते हैं, यानी यू कैन हैव 100 स्टेप्स आफ्टर योर फूड। और एक चीज़ करने से हम बचें, जो लोग लॉन्ग वॉक या फिर रिगरस एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं, तो खाना खाने के बाद ये कभी भी ना करें। इसकी वजह से बहुत सारे स्किन डिसीजेस हो जाते हैं या फिर शरीर का संतुलन भी बिगड़ जाता है, क्योंकि द होल ऑफ डाइजेस्टिव प्रोसेस इज गोइंग ऑन एंड यू आर ट्राइंग टू डू सम अदर थिंग्स। तो अगर शरीर के मोमेंट्स ज़्यादा होते रहेंगे तो your body cannot concentrate on the digestive part. So you should not be doing exercise or you should not be doing some rigorous movements after having food. बहुत सारे लोग साइकिलिंग के लिए निकल जाते हैं after having food. So this is a very very dangerous thing. Next slide. अब खाना खाते समय दो लोगों के बारे में हम बोलेंगे, एक है हेल्दी पीपल और दूसरे हैं जो बीमार है, उनके बारे में। तो जो हेल्दी है उनके लिए तो अभी तक जो भी मैंने बताया है वो सभी आपका ध्यान रखते हुए आपको खाना है। जो फूड आपके लिए सूटेबल है, जो अकॉर्डिंग टू सीजन है, ये सभी हेल्दी चीज़ें आप ले सकते हैं। खाने का आप जो आपका वक्त है वो आपको संभालना ज़रूरी है। वो जो वक्त है वो चला ना जाए, इसके लिए आपको प्रयत्न करना है कि मुझे यही टाइम में मेरा खाना खा लूँ। ट्राई टू अवॉइड डिलेइंग द फूड टाइम। और एक बहुत महत्वपूर्ण ये बात है कि जब भी सूर्य हमारे आकाश में रहता है तब तक ही हमें खाना खाना है, यानी सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद खाना, ये दोनों ही हमारे लिए हानिकारक है। तो सूर्य जब आ जाएगा, सन आप अगर देख सकते हैं, तो इसके बाद अगर आपको भूख लगती है तो यू कैन हैव फूड। बट जैसे जैसे सूर्यास्त होने के बाद अगर आप खाने की कोशिश करते हैं तो दैट इज़ गोइंग टू हार्म यू। हमारे शरीर के जो चैनल्स हैं या फिर हमारा वर्किंग सिस्टम है वो प्रॉपर कब रहता है, तो जब भी सूर्य रहेगा, when there is sunshine in the sky, then only your body is functioning properly. So sluggishness आ जाता है एक प्रकार का, जैसे ही सूर्यास्त होता है तो बॉडी एक्टिविटीज थोड़े से डिमिनिश हो जाते हैं। सो यू शुड नॉट बी हैविंग हेवी फूड आफ्टर द सनसेट्स। और एक बात ये है कि हमारा जो हृदय है, योर हार्ट, सो जब भी सूर्योदय होता है तो वो इट ब्लूम्स एंड आफ्टर द सनसेट्स अगेन वो एक कली के रूप में आ जाता है। तो यू नीड टू नो द सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन इन योर बॉडी। सो ट्राई टू हैव फूड व्हेनेवर देयर इज सन इन द स्काई। खाने के 2 टाइमिंग रखना ज़रूरी है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट स्लाइड। अभी ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप जब बीमार रहते हैं तब आप किस प्रकार का खाना खाना चाहिए। रेगुलर जो हमारा खाना बन रहा है वो हम खाएं या ना खाएं,
ये एक सवाल रहता है। बहुत सारे लोगों को ये अंदर से ही महसूस होने शुरू हो जाता है कि मैं ये खाना नहीं खा पाऊंगा। तो एट दैट टाइम व्हाट यू नीड टू डू, तो ऐसे समय पर आपको बहुत लाइट डाइट लेना ज़रूरी है, जैसे कि मूंग दाल का पानी या फिर गंजी राइस वाटर, चावल उबाल के उसका जो पानी है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर रागी रोज जो रहता है नाचनी, रागी का गंजी आप बना के ले सकते हैं। दाल खिचड़ी, या ये भी थोड़ा सा हेवी है आइटम, अगर एपेटाइट अच्छा होने लगा तो आप इसके ऊपर भी आ सकते हैं, लेकिन एट इन द फर्स्ट 2 days यू नीड टू हैव वेरी लाइट लिक्विड डाइट। जैसे जैसे आपका एपेटाइट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ग्रेजुअली यू नीड टू शिफ्ट ऑन योर नॉर्मल डाइट। So this should be kept in mind that whenever our children are sick, do not force them to have food. Let them have लंघन। लंघन यानी आपको कम मात्रा में खाना खाना है, या फिर बिल्कुल भी अगर भूख नहीं लग रही है तो गर्म पानी पी लें। तो ये करवाना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस उनके शरीर में जो शुरू है वो निरंतर बना रहे और जल्दी से वो बच्चा ठीक हो जाए। इसलिए आपको खाने के लिए फोर्स नहीं करना है। या फिर हम भी अगर कभी बीमार पड़ते हैं तो हमें पहले के 2-3 दिन जब तक आपको भूख नहीं लगती है तब तक आपको बहुत कम मात्रा में और लिक्विड डाइट लेना ज़रूरी है, ताकि हम इस बीमारी से जल्दी से बाहर आ सकें। आई वुड लाइक टू टेल वन मोर थिंग कि आजकल कोरोना में बहुत सारे लोगों को फीवर आता ही है। ऐसे समय पर हम उस पेशेंट के लिए क्या दें? तो we need to give liquid and a very light diet, that is very important। अगर हम ऐसे समय पर थोड़ा सा भी heavy diet देते हैं, and I have observed many patients who if they are having heavy diet in these starting few days, so they are not going to recover। अच्छे से रिकवरी नहीं होती है एंड दे टेक अ लॉन्ग पीरियड टू रिकवर। सो बेटर टू अवॉइड फूड इन द इनिशियल डेज ऑफ योर डिजीज। नेक्स्ट स्लाइड। तो लाइट फूड क्या क्या है? ये मूंग दाल का सूप आप बना सकते हैं। दिस इज वेरी गुड एंड इट इज ऑल्सो पथ्य। पथ्य यानी आपके शरीर के लिए हितकारी है, इसलिए इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका सेवन कर सकते हैं। इसको अच्छे से बॉईल कीजिए और पानी मिला के इसको लिक्विड कर लीजिए, और आप घी में इसको तड़का दे सकते हैं जीरा अजवाइन के साथ, या फिर छोटी सी एक ड्राई चिली के साथ भी आप इसको ले सकते हैं। थोड़े से मेथी सीड्स भी ऐड कर सकते हैं। तो आपका एपेटाइट डाउन है या फिर कभी आपको लो फीवर है तो ऐसे समय पर आप मूंग दाल का सूप ले सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट इज रागी सूप। तो ये रागी भी आपको क्या करना है, पाउडर्ड रागी बनाना है और यू नीड टू बॉईल इट विथ वाटर। और इसका आप जब भी ये करते हैं सेवन करते हैं तो उसमें जीरा और अजवाइन उसका पाउडर आप उसमें डाल लीजिए, तो ताकि उससे आपके टेस्ट जो व्यक्ति बीमार है उसके लिए वो थोड़ा सा टेस्टी रहेगा। रिमेंबर वन थिंग कि वो जो जीरा और अजवाइन ले रहे हैं उसको थोड़ा सा घी में भूनना ज़रूरी है और उसके बाद आप उसका इस्तेमाल करो। कभी कभार आप इसको स्वीट फॉर्म में भी ले सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये एक प्रकार का ये है जो बीमार है उनके लिए बहुत ही अच्छा फूड है। इसको हम लाजा मंड बोलते हैं। तो आपकी धान की लाई जो आती है उसको आपको गर्म पानी में डाल देना है, और जो वाटर रहेगा दैट यू कैन गिव इट टू द पेशेंट। तो इससे क्या है, जब भी एनर्जी लेवल डाउन रहती है या फिर डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हुआ है, जिसको लूज मोशंस हो रहे हैं या वॉमिटिंग हो रहा है, उनके लिए भी ये बहुत ही उपयुक्त ऐसा रेसिपी है। सो दिस इज़ वेरी वेरी गुड फॉर दोज हु आर हैविंग वेरी लो एपेटाइट। दिस इज़ नॉट एट ऑल गोइंग टू क्रिएट एनी प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट स्लाइड। इसके बाद में मंडपे या विलेपी, यानी दीज आर द फॉर्म्स ऑफ राइस ओनली। ये कैसा है, जब भी पानी ज़्यादा आप डाल के चावल उबालते हैं तो ऊपर का पानी ले लेंगे, तो ये एक प्रकार का आहार हो जाएगा।
आपका अग्नि अगर काम नहीं कर रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम लो है, तो आप इस राइस वाटर को आप ले सकते हैं। जैसे जैसे आपका एपेटाइट बढ़ रहा है, वैसे वैसे आप उसके साथ राइस के जो चावल के दाने हैं वो भी ले सकते हैं। तो ये उत्तरोत्तर जैसे जैसे अग्नि का ये बढ़ जाता है, शक्ति बढ़ जाता है, वैसे वैसे आप इसको बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये विलेपी है, यानी वी आर हैविंग along with water we are having the rice also. So अच्छा एपेटाइट रहने पर आप इसका भी सेवन कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें मैं आप जब बीमार होंगे या फिर आपके रिलेटिव जब बीमार रहेंगे तब आप क्या खाना दे सकते हैं उनके बारे में आपको जानकारी दे रही हूँ। नेक्स्ट स्लाइड। उपमा है, पतला उपमा बना के भी आप दे सकते हैं। बहुत गाढ़ा ना बनाएं, थोड़ा सा पतला ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही है तो आप सूप के टाइप पर सूप जैसा भी उसको बना के दे सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट दाल खिचड़ी भी अच्छी रहेगी, लेकिन उसके लिए क्या है, एपेटाइट थोड़ा अच्छा रहना ज़रूरी है। नेक्स्ट स्लाइड। सो वन मोर थिंग, मूंग दाल करी, ये भी आप अपने इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो हेल्दी एंड इट इज़ ऑल्सो nutritious, so you can give this one food time can also be this मूंग दाल करी, एक फूड टाइम पूरा भी आप इसको खा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अगर आपका एपेटाइट अच्छा हो, तो ये स्वस्थ व्यक्तियों के लिए मैं बोल रही हूँ, अगर आपका डाइट बहुत एपेटाइट अच्छा है, आपको भूख लग रही है, तो आप दलिया ले सकते हैं। नेक्स्ट। तो दिस इज जवार रेसिपी। तो इसके पफ्स रहते हैं, ज्वार पफ्स, या फिर उसको उबाल के भी आप ले सकते हैं। तो दोनों टाइप में आप खाना खा सकते हैं, या फिर पाउडर का आप गंजी बना के भी दे सकते हैं। अलग अलग प्रकार के रेसिपीज हैं, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट। रोटी के इसमें भी आप इस ज्वार को खा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। पराठे हैं, या फिर हम उसको थालपीठ बोलते हैं, ये जब आपका एपेटाइट अच्छा हो, क्योंकि दिस इज फुल ऑफ बटर एंड ऑयल, सो you need to have a good appetite whenever you are thinking of having thalipit. So this food is only for healthy people. Next. ये भी हमारे ट्रेडिशन में एक बहुत अच्छा डाइट है, लिक्विड डाइट है सत्तू, तो इसका भी इस्तेमाल होना ज़रूरी है। So this is very nutritious as well as it gives strength to your body. So do not forget to have such kind of food. Next slide. ये भी एक बहुत ही न्यूट्रिशियस ये है मसाला, दूध जो हम बनाते हैं वो ड्राई फ्रूट्स युक्त, और जो भी नाग केसर है उसमें उसका भी इस्तेमाल होना ज़रूरी है। सो इन दिस वे यू हैव कम टू यू नो वेरी वेरी वेल दैट हमारे जो ट्रेडिशनल फूड आइटम्स हैं, दोज आर वेरी गुड, दोज आर न्यूट्रिशियस, एंड जो एक हम उसको बनाने का तरीका है वो भी बहुत अच्छा है। बिल्कुल हमारे शरीर में कोई भी हानिकारक लक्षण नहीं दिखाई देते। लेकिन हाँ, अभी जो आजकल का जो फैड है, जिसमें बहुत सारे रेसिपीज ट्राई होते हैं, जिसमें बहुत कॉम्प्लेक्स आ जाता है, जैसे कि कुछ तला हुआ है, फिर उसको कुछ और भून लेते हैं, उसमें और कुछ बिल्कुल भी जो पका हुआ नहीं है, ऐसे भी चीज़ें ऐड कर दी जाती हैं, जिसकी वजह से क्या है, इट बिकम्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स फूड, और इस कॉम्प्लेक्स फूड को पचाना हमारे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। और जैसे कि आप बर्गर का सोचेंगे तो उसमें जो बीच में रखा जाता है वो आलू टिक्की, और ऊपर से ड्राइड बन, तो ये दिस कॉम्बिनेशन इज़ नॉट गुड फॉर योर बॉडी। ये पचाने में सुलभता नहीं रहेगी, इट इज़ डिफ़िकल्ट, और उसमें और बहुत सारे स्निग्ध पदार्थ डाले जाते हैं, जैसे कि चीज़ है और बहुत सारा सॉसेस वो डाल देते हैं, जो शरीर में
विदाह यानी एक प्रकार का एसिड निर्माण कर देते हैं. Once in a while you can have such kind of food but not on a very regular basis. आप आते जाते अगर ऐसी चीजें बार बार खा रहे हैं तो naturally they are going to create some kind of disease in your body. So better to avoid such food and be healthy. Thank you. I thank all for attending my session, and I thank Aman sir and madam for conducting the session. I thank Gopal sir for giving me such an opportunity, and I thank all my guru who gave me such lessons that I could uh, give you a short introduction about Ayurveda diet. Thank you. आपके अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं. नमस्कार मैडम. नमस्कार सर. डॉक्टर गोपाल, आपने सभी व्यूअर्स को भी धन्यवाद देना चाहूँगा. सॉरी फॉर दिस इंटरवेंशन, लेकिन एक ज़रूरी सूचना आप लोगों के साथ में आज शेयर करना चाह रहा था. उसके बाद में यदि आपके मन में प्रश्न है मैडम से कुछ पूछने के लिए तो आपका स्वागत है. सबसे पहले तो मैं आज की दोनों ही जो हमारी जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया डॉक्टर सतपाल कौर ने, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा. वो हमारी योगा की सबसे यंग स्टूडेंट हैं. शी इज़ अ प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी, और आप देख ही रहे हैं कि कितना उनके अंदर एक उत्साह और डायनामिज्म योग के माध्यम से और ज़्यादा वो बढ़ गया है, वो रिफ्लेक्ट होता है फेस पर. तो मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर कौर, और ख़ास तौर पे जो हमारी आज की वक्ता रहीं, जो हमारी ग्लोबल योग अलायंस की आयुर्वेद की एडवाइज़र भी हैं, रिसर्च टीम की मेंबर भी हैं ग्लोबल योग अलायंस की, डॉक्टर मृणाल तिवारी. बहुत ही अच्छे ढंग से मैडम आपने आज हमारे दर्शकों को बताया. हम सब लोग सब कुछ करते हैं लेकिन सिर्फ खाने का ध्यान नहीं रखते. ये बहुत बड़ी सच्चाई है. जो मिल गया वो खा लेते हैं, ये बगैर ये जाने के इसके क्या परिणाम होंगे, क्या दुष्परिणाम होंगे. आपने जो बातें आज बताई हैं, जो टिप्स आज दिए हैं हमारे व्यूअर्स को, मैं समझता हूँ जिन्होंने भी ध्यान से सुना है इस चीज़ को, बहुत ही उसका जीवन में आप न केवल उपयोग कीजिए, उसको पालन कीजिए. आप देखेंगे खाली अगर आप अपनी एक डाइट को ठीक रख लें या कंट्रोल रख लें तो बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारी समस्याओं से आप वैसे ही बच जाएंगे. लेकिन कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि जब मैं आजकल घरों में देखता हूँ कि टीवी तो देखने के लिए है, मनोरंजन, और फ्रिज है सामान रखने के लिए. पता लगता है कि फ्रिज का एक आधा हिस्सा सिर्फ दवाइयों से भरा है. हमने क्यों अलाउ किया अपना फ्रिज दवाइयाँ रखने के लिए, जबकि ये भोजन रखने के लिए बनाया गया था, दूसरी चीज़ों के लिए बनाया गया था. तो मैं समझता हूँ डॉक्टर मृणाल तिवारी ने जो आज हमको ये उपयोगी बातें बताई हैं, हम सब लोग बहुत ध्यान रखेंगे. और एक सूचना जो विशेष रूप से मैं आपको आज देना चाह रहा था, ग्लोबल योग अलायंस का ये पूरी हमारी जो टीम है, उनका सबका प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह आपके स्वास्थ्य को लेकर हम लोग आपको लाभान्वित कर सकें. अलग अलग विषयों पर अलग अलग विशेषज्ञ हम लोग बुलाते हैं. एक बहुत ही सुंदर सेशन बीच में हुआ नाद, नृत्य और योग पर, जिसमें भारत की 3 महान नृत्यांगनाओं ने और 2 वोकलिस्ट ने भाग लिया. एक और सेशन हम बहुत ही सुंदर अभी आने वाले शनिवार को रखने जा रहे हैं, 19 जून को 10 से 11 बजे के बीच, जिसके अंदर हमारे भारत के जाने माने खिलाड़ी, बहुत ही जो ओलंपियंस हैं, जिसके अंदर मैं नाम कुछ ले सकता हूँ. हमारी जिम्नास्टिक्स में है दीपा कर्माकर है, उसने एक इतिहास बनाया है ओलंपिक में. उनके कोच हैं श्री BS नंदी, मेरे मित्र भी हैं, उन्होंने इतिहास बनाया है ऐसी बच्ची प्रोड्यूस करके. जफ़र इकबाल साहब हैं, हॉकी के जादूगर हैं. हमारी बहुत बड़ी विश्व की एथलीट हैं अंजू बॉबी जॉर्ज हैं. हमारे विश्व के जाने माने शूटर हैं. हमारे क्रिकेट के महान सचिन तेंदुलकर जी को भी मैं कोशिश कर रहा हूँ इस कार्यक्रम में लाने के लिए. और हमारे इस पूरे कार्यक्रम को जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं हमारे डॉक्टर प्रेमचंद कश्यप, जो हमारे
एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे हैं पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, जिनका बहुत बड़ा रोल रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स को कामयाब करने में भारत में। हमारे रोजाना रेगुलर वो सेशन में जुड़ते हैं, अभी भी शायद जुड़े हैं, मुझे प्रेम जी अगर जुड़े हैं तो जरा आप थोड़ा सा अवगत होइए। ये सब गोपाल जी आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं हैं। आप हमें उंगली पकड़ करके 13 साल की उम्र से 67 साल की उम्र तक ले आए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Dr. Kashyap. He has been not only the brilliant officer of the Sports Authority of India, but a brilliant person also. So he is playing a key role to take up this program. और मैं इसलिए आज आपको बीच में आया हूं कि ये प्रोग्राम आप सब जरूर देखिएगा। बहुत ही एक अजीब, और मैं समझता हूं कि इतना एक अच्छा इंटरेक्शन आपको देखने को मिलेगा। उसका थीम भी हमने दिया है कि योगा एज ए स्टेपिंग स्टोन टू ब्रिंग एक्सेस इन स्पोर्ट्स। तो ये बहुत सारे खिलाड़ियों ने कहा कि सर आप सबको बुला रहे हो, तो डॉक्टर कश्यप का बहुत सुंदर मुझे लगा ये आइडिया, क्यों ना हम अपने सारे भारत के ओलंपियन को, सारे खिलाड़ियों को भी इस मंच पर लाएं। और मैं समझता हूँ ये कार्य अभी तक कोई और संस्था अभी तक नहीं कर पाई है। ग्लोबल योग अलायंस का ये प्रयास रहा है कलाकारों को, खिलाड़ियों को, योगियों को, नेचुरोपैथ्स को, मेडिकल साइंटिस्ट को, अल्टरनेटिव हीलर्स, थेरेपी के हीलर्स को, सभी लोगों को एक साथ एक मंच पर लाने का हमारा प्रयास है। तो मैं चाहूँगा बहुत से बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। और अब मैं जो दर्शक हमारे आज मैडम मृणाल तिवारी जी से अपने कुछ प्रश्न रखना चाहते हैं, उनके लिए स्वागत है। ओवर टू डॉक्टर कौर एंड डॉक्टर मृणाल। थैंक यू सो मच सर। आज का सेशन तो वाकई बहुत ही बढ़िया सेशन था। तो इस पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे सभी के माइंड में। तो हाउस इज ओपन फॉर योर क्वेरीज। प्लीज़ किसी के पास में कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। जो हमारे भोजन में ये क्षारीय तत्व और अम्लीय तत्व होते हैं, इनका क्या मतलब ये इनको हम लोग कैसे जज करें कि कौन से क्षारीय हैं और कौन से अम्लीय हैं और हमें कौन से लेने चाहिए? ऐसे थोड़ा सा ऐसा होता है ना, भोजन में ये तत्व होने चाहिए, ये नहीं होने चाहिए, क्या ये बता सकते हैं मैम आप? एक्चुअली आई कुड नॉट हियर इट प्रॉपरली। थोड़ा सा आप मैम एक तो हाँ। क्षारीय तत्व होते हैं और एक अम्लीय तत्व। एक्चुअली पता ही है ना क्षारीय तत्व कौन से होते हैं जो हमें भोजन में लेने चाहिए और अम्लीय तत्व कौन से होते हैं जो हमें लेने चाहिए? अच्छा, क्षारीय और अम्लीय। हाँ जी मैम, ये हमें मतलब समझ नहीं आता कि हमें कौन से तत्व लेने हैं और ये होते कौन से हैं, क्षारीय कौन से होते हैं और अम्लीय कौन से होते हैं? नहीं, आप आहार का जब भी आहार के बारे में सोचते हैं तो आप षट रसों को ध्यान में रख के लीजिए, यानी मधुर, मीठा, अम्ल, सार, लवण यानी सॉल्टी फूड, कटु, कटु यानी जो तेज चीजें रहते हैं, तिक्त, कड़वी चीजें जो रहती हैं, और कषाय रसात्मक यानी जब आंवला खाते हैं तो जो रस आपके शरीर में आपके जिह्वा पर रहेगी दैट इज कषाय रस। तो ये अलग अलग प्रकार के छठ रसों का ही आप ध्यान में रख के खाना लीजिए। अम्लीय द्रव्य यानी बहुत खट्टे जो रहते हैं वो भी इसमें आ जाएंगे। क्षारीय यहाँ पे बहुत सारे जो मिनरल युक्त रहेगा वो क्षारीय रहेगा, लेकिन ऐसे आप उसका ये मत सोचिए, आप षटरस आहार युक्त वही आप उसका ही ध्यान रखिए। ओके मैम, थैंक यू मैम। मैम थोड़ा ऊंचा बोलिए प्लीज। थैंक यू। नमस्कार मैम। हेलो। हाँ बोलिए। मैम मैं ये पूछना चाहती हूँ कि राइस जो है उसे हमें कब खाना चाहिए? दिन में अच्छा है खाना या रात को खाना अच्छा है सेहत के लिए? सबसे पहली बात तो आपको रात को खाना नहीं खाना है, आपको शाम में ही खाना खाना है।
और जो चावल ले रहे हैं वो आप दोनों टाइम पर ले सकते हैं। अगर आपको भूख अच्छी तरह लग रही है तो आप ले सकते हैं। जो आफ्टरनून का आपका जो डाइट है, दोपहर का जो आपका है, उसमें आप अच्छे से ले सकते हैं क्वांटिटी में, लेकिन शाम को आप थोड़ा सा कम लीजिए। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मैम, हेलो मैम। हाँ बोलिए। जी मैम, कोई कोई डाइटिशियंस बोलते हैं कि खाना को हमें 2 घंटे के बीचों बीच मतलब 2 घंटे के बाद लेनी चाहिए। 2-2 घंटे के बाद खाना खाना चाहिए मतलब। तो क्या आपने तो बोला 2 ही टाइम खाने के लिए बेस्ट है। यस तो यस यस। कैसे एक्चुअली ये जो बताया जा रहा है तो इट इज एक्चुअली नॉट रिकमेंडेबल कि आप हर 2 घंटे के बाद खाना खाएं। ये तो हमारा शरीर का जो पाचन संस्था है वो पचा ही नहीं पाएगा। समझिए आप एक काम का शेड्यूल आपके बॉडी को दे रहे हैं एंड यू आर कॉन्स्टेंटली गिविंग वर्क टू समबडी, तो दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क इन लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टर्म में आपका शरीर थक जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम गिव अप कर देगी कि हर एक 2 घंटे के बाद कुछ ना कुछ आ रहा है और मुझे ये पचाना पड़ रहा है। सो दैट विल बी अ बिग हैवॉक इन योर बॉडी। सो ट्राई टू अवॉइड हैविंग दिस काइंड ऑफ फूड। लेकिन आजकल डाइटिशियन बोलते हैं, लेकिन उसके लिए शास्त्रीय आधार नहीं है। शास्त्रीय आधार हमारा आयुर्वेद का यह है कि आप सिर्फ 2 वक्त खाइए, ज़्यादा से ज़्यादा 3 वक्त, यानी 1 ब्रेकफास्ट एंड 2 फूड टाइम्स, 2 मील्स। तो इतना ही काफ़ी है आपके शरीर के लिए। बार बार खाने से क्या होगा कि आपके स्टमक को भी काम करना पड़ रहा है, आपके लीवर उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस बार बार उनको सिक्रेट करना पड़ता है, तो जिसकी वजह से इन अ शॉर्ट पीरियड व्हाट हैपन्स, इट इज गोइंग टू गेट डिस्टर्ब। आप एक तो मोटापे की तरफ चले जाएंगे, या फिर आपको और कोई भी डिसीज या हाइपर लिपिड्स ऐसे भी हो सकता है, हाइपर लिपिडेमिया भी हो सकता है। तो दैट इज नॉट रिकमेंडल एट ऑल। बहुत सारे आप जो हमारे फोर फादर्स देख रहे हैं, ग्रैंड फादर्स देख रहे हैं, वो कैसे हैं, अपना टाइमिंग मेंटेन करके रखे हुए हैं। यू कैन सी वेरी गुड एग्जाम्पल्स। जो योगी है वो तो सिर्फ एक ही बार खाते हैं। हम्म, कहा कहा भी गया है कि एक बार जो खाएगा वो योगी है, 2 बार जो खाते हैं वो भोगी है। तो आपको एक टाइम खाना भी इनफ है। इज ओनली जस्ट टू सेटिस्फाई योर सेल्फ दे आर recommending you or they are telling you to have food again and again, but that is not at all good for your body. थैंक यू मैम। 2 वक्त पर आप अच्छा खाना खा लेंगे तो दैट इज गोइंग टू सॉल्व एवरीथिंग। गुड मॉर्निंग मैम। बोलिए। मैम, जैसे भी आपने बताया कि डाइटिशियंस 2 2 आवर्स बाद जैसे हमें बोलते हैं खाने के लिए, तो मैम वो ज़्यादातर हमें लिक्विड डाइट्स देते हैं। तो मतलब मेन मील तो वो हमें जैसे 2 o'clock एंड 8 o'clock देते हैं। इन बिटवीन जो हमें वो मील्स देते हैं वो या फ्रूट्स होते हैं, या वो ग्रीन टी होती है, या वो छाछ होती है, दिस टाइप ऑफ। तो इज इट गुड टू हैव? और वो 8 o'clock बोल लेते हैं कि आप 8 o'clock जो है अपना आपने मील ख़त्म कर लीजिए। जितना हो सके उतना शाम का खाना आपको जल्दी खाना है, 6 से 8 के बीच में। या फिर आपको अगर टाइम है तो आप 7 बजे तक ही खत्म कर लो। 6 बजे आपको टाइम मिल रहा है तो 6 बजे ही आप खाना कर लो। आप उसको डिले मत करते रहो। और दूसरा एक ये है, सलाद के बारे में ये कहूँगी कि जितना कुक्ड फूड है उतना आप कंज्यूम करो। अनकुक्ड फूड कम मात्रा में खाना ज़रूरी है, इन वेरी लिटिल अमाउंट्स। अगर आप अनकुक्ड फूड ज़्यादा खा रहे हैं, सलाड्स ही ज़्यादा खा रहे हैं, तो हाउ द बॉडी इज गोइंग टू मेंटेन इट्स हार्मोनी? दैट इज गोइंग टू डिस्टर्ब इट, क्योंकि न्यूट्रिशियस उसमें ज़्यादा नहीं रहेगा। इट इज़ मोर ऑफ वाटर and that is not going to satisfy you. So you keep on eating again and again, because salads are such things that it is going to just fill your stomach. These are stomach fillers. They are not either nutritious or they are not having any satisfying thing in them. So try to avoid such things. जो हमारे इसमें बताया है, दिस इज अ वे ऑफ लाइफ। आयुर्वेदा क्या है? एक वे ऑफ लाइफ है। वो आपको बता रही है कि आपको सिर्फ खाने के 2 ही टाइम रखने हैं, तो वो टाइम टेस्टेड है एंड इट हैज बीन
there since many thousands of years. So this is only recommendable that you should be having only two food times, उससे ज़्यादा नहीं. और अगर आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, आप काम पर जा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा खा के निकलिए और वहाँ जाने के बाद दोपहर का जो खाना है वो आप अच्छे से खाएं. थैंक यू मैम. यस मैम, ये एक प्रश्न मेरा है कि ये पानी जो है, पानी खाना खाने के पहले कितने देर लेना चाहिए और खाने के बाद कितना? ऐसे तो बोलते हैं खाना खाने के आधे घंटे बाद ही पानी लेना चाहिए, लेकिन खाना खाने वक्त अगर पानी की आवश्यकता पड़ जाती है तो उस समय हमें यस यस, उसके बारे में भी बहुत बड़े ये है कि पानी हमको खाना खाते समय बार बार थोड़ा थोड़ा पानी पीना तो ज़रूरी है ही, लेकिन खाना खाने के बाद बहुत सारा पानी नहीं पीना है. आप थोड़ा सा पी लीजिए एंड आफ्टर 20-25 मिनट्स आप यथेच्छ, यानी आपको जितना चाहिए उतना आप पानी पी सकते हैं. खाना खाते समय पानी पीना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आप जो भी ड्राई आइटम्स और थोड़े से जो फैटी फूड है वो भी आप खा रहे हैं, तो इनको मिक्सिंग करने के लिए जो रिक्वायर्ड अमाउंट है, वाटर क्वांटिटी रिक्वायर्ड है, वो नहीं मिल पाती तो पचन अच्छे से नहीं होगा. जो चाइम तैयार होता है उसके लिए वाटर इज नेसेसरी. सो बीच बीच में थोड़ा सा आप सिप्स ऑफ वाटर लो. ऐसा नहीं है कि पूरा आप ग्लास, 2 ग्लास या फिर एक पूरा जग आप पी ले, ऐसा नहीं है. तो सिप्स ऑफ वाटर इज नेसेसरी इन बिटवीन योर डाइट. तो बीच बीच में आप थोड़ा थोड़ा सा पानी पीते रहो और खाना खाने के बाद थोड़ा सा ही पियो और बाद में आप अच्छे से पानी पी सकते हैं. नमस्कार मैम. नमस्कार, बोलिए. मैम, समशन के बारे में थोड़ा दोबारा बताइएगा. किसके बारे में? समशन. समशन यानी क्या है? पथ्य और अपथ्य दोनों मिला के खाना. अपथ्य क्या है पहले वो आपने जान लिया कि समझो आप बासी खाना खा रहे हैं या फिर आपको आपके शरीर के लिए वो हितकारी नहीं है, उसके लिए हम अपथ्य बोलते हैं. या फिर वो खाना शरीर में जाने के बाद अगर आपको एसिडिटी होती है या फिर आपको जलन महसूस होती है या फिर आपको गैसेस हो रहे हैं उस खाने की वजह से, तो वो सभी आहार क्या है? अपथ्य है आपके लिए. और ऐसे समय पर अभी अभी आपने जो खाना बनाया है वो पथ्यकर है, फ्रेश फूड है, जैसे कि सब्जी, रोटी, दाल, चावल ये सब बना लिया और उसके साथ में आपने अगर कल का बचा हुआ राइस है वो भी आपने खा लिया, तो ये क्या हो जाएगा? जो पथ्यकर है वो आपने खाया और उसके साथ आपने एक चीज़ ऐसी है जो आपके शरीर के लिए हितकारी नहीं है, तो पथ्य और अपथ्य को आपने मिक्स करके खा लिया, तो फिर वो क्या हो जाएगा? समशन. आप मिला के मिक्स करके खा रहे हैं, तो दैट इज गोइंग टू क्रिएट डिसीजेस. कैसे भी हो, आप सभी लोग एक ध्यान में रख लो कि बासी खाना बिल्कुल भी नहीं खाना है. बासी चावल, बासी दाल, ये सब कैसे हैं? उनमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तैयार हो जाते हैं और एक हमारे इसमें ऐसा है कि एक रात होने के बाद वो खाना हमारे शरीर के लिए हानिकारक ही है. आप जब तक खाएंगे उसी दिन का बनाया हुआ खाना खा सकते हैं. जो तली हुई चीज़ें हैं वो आप 8 दिन तक खा सकते हैं. जो आप फ्लावर्स यूज़ करते हैं, जैसे कि आटा जो यूज़ करते हैं, वो भी ऐसा नहीं है कि 3-4 महीने पहले बना हुआ आटा आप ले रहे हैं, तो उसको भी एक टाइम पीरियड है. समझो आप सीजन वाइज है, वो भी समझो आप सर्दी में आप आटा बना के रखते हैं तो वो 1 महीने तक चल जाएगा, उसके बाद में इट इज़ नॉट न्यूट्रिशियस. वो भी ध्यान रखना ज़रूरी है. आजकल जो सभी लोग पैकेज्ड आटा लेके आते हैं, तो दिस इज़ गोइंग टू हार्म यू बिकॉज इट इज़ नॉट एट ऑल न्यूट्रिशियस. फ्रेश आप अगर आप ला रहे हैं तो दैट विल बी यूजफुल, बट इफ़ इट इज़ द मैन्युफैक्चरिंग डेट इज़ ऑफ 2-3 months बैक, सो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू एट ऑल. सो वो खा के भी आप कुछ नहीं कर पा रहे, तो दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी फुलफिलिंग योर न्यूट्रिशियस नीड ऑफ द बॉडी. तो इससे आप बचें. मैम, जो हमारे बुजुर्ग हैं वो शुरू से मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ कि वो
दो रोटियां रात को रख देते थे कि ये सुबह बासी रोटियां जो है वो दूध में डाल के खा लेते थे कि उसमें कोलेस्ट्रॉल में कमी आ जाती है, कुछ इस टाइप का। तो ये चीजें एक बार कैसा है, गेहूं की रोटी चल जाती है दूसरे दिन सुबह में, लेकिन उसके बाद में नहीं। लेकिन ये भी फ्रिक्वेंटली हमें नहीं करना है। वो भी कैसा है, उनको एक ये हो जाता है, आदत पड़ जाती है वैसा खाने की बार बार, विच इज़ नॉट एट ऑल रिकमेंडेबल। तो आपको एक ही ताज़ा रोटी ही खाना है। ये कभी कभार हो सकता है ज़्यादा बना दिया तो उसको आप दूसरे दिन सुबह में खा सकते हैं, उसके बाद में नहीं। इवन दो इन एनी सीजन तो मैम उन्होंने आदत बना ली, लेकिन आप आदत तोड़ दो। अच्छा मैम, एक चीज और है कि जैसे आपने बोला कि सुबह 10 बजे से सुबह का खाना और शाम को 6 बजे का, तो इसमें तो काफी टाइम डिस्टेंस पड़ जाता है। तो कुछ लोग बोलते हैं खाली पेट भी ज्यादा नहीं रहना चाहिए, उसमें बाजू बढ़ जाती है। ऐसा नहीं है एक्चुअली। आपके आहार की मात्रा आपकी ऑलरेडी निर्धारित रहती है कि आपको कितना खाना खाना है। तो एक बार आपका उस खाने से सेटिस्फैक्शन हो गया तो सेकेंड टाइम आने तक आप अच्छे से बने रहते हैं विदाउट एनी फूड। तो ये चीज़ें हमको एक्चुअली ये लालच निर्माण करती है। जैसे कि आपने कुछ देख लिया, आपको लगता है कि अरे ये खा लो, तो एक्चुअली विच इज़ नॉट नीडेड एंड यू आर हैविंग इट। इसकी वजह से आपको मोटापा आता है, या फिर आपके लिपिड्स बढ़ जाते हैं, आपका हार्ट इम्प्रॉपरली फंक्शन करता है। जितना आपका वेट बढ़ेगा, आप ध्यान में रखिए कि उतना उसका काम बढ़ जाता है। इट नीड्स टू पंप मोर एंड मोर टू सप्लाई एवरीथिंग। सो बेटर टू अवॉइड सच फ्रीक्वेंसी। वो बढ़ाना नहीं चाहिए आपको, मात्रा उतने ही रखो। आप 2 टाइम पर जितना खा रहे हैं उसी समय पर आपको जो कुछ भी इंक्लूड करना है वो आप इंक्लूड करते रहो, ताकि आपका ये सेटिस्फैक्शन बना रहे। हाँ, समझो आपको कुछ कम पड़ रहा है ऐसा लग रहा है तो तभी आप बढ़ा लो। एक 3-4 दिन आपको ये सेट करने में लग जाते हैं, और एक बार आपको ध्यान में आ गया कि इतना खाना मेरे लिए सफिशिएंट है, तो आप वैसे ही करते रहेंगे। हाँ, अगर आपके हाथ से आप कुछ शारीरिक कष्ट ज़्यादा कर रहे हैं, जैसे आप कुछ आपका फील्ड वर्क है, फील्ड जॉब है, आप कुछ बाहर काम कर रहे हैं, फिजिकल वर्क हो रहा है, तो ये देन यू नीड मोर अमाउंट एंड दैट इज नेचुरली डाइजेस्टेड। ऐसा नहीं है कि वो डाइजेस्ट नहीं होगा। शारीरिक कष्ट जितना अच्छा करेंगे उतना आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा। इसीलिए तो वर्कआउट बहुत सारे लोग कर लेते हैं कि ताकि भूख अच्छी लगे। थैंक यू मैम। नमस्कार हाँ, बोलिए मैम। मतलब ऐसा है कि मैं तो, आप बोली 2 टाइम खाना खाना चाहिए, मैं 4 टाइम खा लेती हूँ, तो उससे कोई अच्छा, प्रॉब्लम नहीं? वो आप धीरे धीरे क्या करो, अभी आप सभी के जो भी आपकी आदतें रहेंगी ना, उसको धीरे धीरे आपको कम करना है। एंड यू नीड टू शिफ्ट ऑन टू हेल्दी डाइट। अगर आप 4 या 5 बार खा रहे हैं तो पहले आपको 3 टाइम पर आप आ जाओ। 3 टाइम इज इनफ फॉर एवरी वन ऑफ अस। 3 बार खाना सबके लिए सफिशिएंट है। आप सुबह में थोड़ा सा नाश्ता कर लो, दोपहर में अच्छे से खा लो, और शाम का खाना कम खा लो। ऐसे आप 3 वक्त का खाना खा सकते हैं। इसके बीच में कुछ भी नहीं खाना है आपके लिए। सिर्फ आपके जो फूड टाइम से उसी टाइम पर आपको खाना खाना है। 5-6 बार आपको बिल्कुल नहीं खाना है। आप एक ध्यान में रख लो कि जितना आप उसको काम लगाएंगे अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को, उतना उसका डिजेनरेशन फास्ट हो जाएगा। यू विल एज सून। आप बहुत जल्दी बूढ़े दिखने शुरू हो जाएंगे। तो आपको अगर यंग रहना है तो यू नीड टू गिव इट लेस वर्क। आपके पाचन संस्था को भी काम कम दीजिए। मैम एक्चुअली मॉर्निंग में मतलब मैं 4 बजे रनिंग करने जाती हूँ, आने के बाद मतलब वो तो हाँ, इफ यू आर एथलीट और आपका अगर फिजिकल वर्क अच्छा हो रहा है तो यू कैन हैव फूड, और वो पच भी जाएगा। बट नॉट टू ऑल अदर्स हु आर नॉट हैविंग सच काइंड ऑफ फिजिकल वर्क। हाँ, अगर आप फिजिकल आपका कुछ हो रहा है तो नेचुरली यू शुड नॉट डिप्राइव एट सच टाइम, तो आप ले सकते हैं।
यस मैम जब तक एक्चुअली आप मैं एक्सरसाइज जब तक कर रहे हैं तब तक लीजिए। जब आप एक्सरसाइज कम कर रही हैं तब आप फिर से शिफ्ट हो जाइए 2 या 3 खाने के टाइम पर, और उससे ज़्यादा नहीं। फिजिकल वर्क कर रहे हैं आप, ग्राउंड एक्सरसाइज आपके अच्छे हैं, एथलीट हैं, या फिर आप कुछ खेल खेल रही हैं, तो फिर दैट इज गुड, क्योंकि ऐसे समय पर भूख अच्छी भी लग जाती है। हाँ मैम वो मतलब लग जाती है मॉर्निंग हाँ, और आप कर सकते इवनिंग। हैं, आपके लिए कुछ नियम नहीं है, मैं नहीं बताऊंगी आपके लिए नियम, क्या आप पचा सकती हैं, बाकी लोग नहीं पचा पाएंगे। यस मैम मतलब मैं सोची कि मतलब प्रॉब्लम होगा क्या नहीं फिजिकल नहीं नहीं, आप ले सकते हैं। यस मैम थैंक यू मैम। मैम मेजर एसपी मैम से मतलब मैं कुछ बात करना चाहती थी, मैम है तो। जी मैम, जी पूजा मैम, प्लीज कहिए। नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते। जय हिंद मैम, आई लुक फॉर यू। ओ अच्छा आर यू फ्रॉम एनसीसी? यस मैम। ओके, तो कोई बात नहीं, हम इसके बाद में मिलते हैं, ठीक है? आप कुछ कहना चाहती हैं मैम? मैम मतलब आप जैसा बनना चाहती हूँ मैम एक्चुअली। ओह So, madam, we are all proud of you. so nice of you, thank you so much ma'am, thank you so much, thank you ma'am। पूजा मैम, जिंदगी में बस हार्ड वर्क करते रहना, अपनी तरफ से अच्छा करते रहना, बाकी किसी चीज की परेशानी कुछ नहीं करना, बस अपना 100% देना, अपने आप ईश्वर आगे आगे ले आता है। तो जिंदगी का तो मेरा तो यही निचोड़ है। थैंक यू मैम। थैंक यू। नमस्कार मैडम। हाँ आज बोलिए। नमस्कार। आयुर्वेद के बारे में नमस्कार। बताया कि दिनचर्या कैसी है। बहुत ही उत्तम लगा विचार और अच्छा लगा कि सूर्य उदय और आज तक किस प्रकार का आहार व्यवहार होना चाहिए। और आपने कोविड के बारे में बताया कि कैसा भोजन दे, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। जो कि किसी को इतना समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है कि कोविड में कैसा भोजन देना, लेकिन आज आपने वो उसके बारे में बताया। ये तो बहुत ही अच्छा आपका विचार है और ज्ञान दिया आपने, शुक्रिया। बहुत सारे जगह पर कोविड में प्रोटीनस डाइट बोलते हैं, जो कि बहुत हानिकारक है। आई हैव सीन पेशेंट्स जो रिकवर नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ हाई प्रोटीन डाइट ड्यूरिंग द इनिशियल डेज। They are not able to recover. After 45 days also they are not able to recover. So that has created a big disturbance while recovering. बहुत बहुत ही अच्छा लगा आपका ये आज का प्रोग्राम। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद डॉक्टर गोपाल जी, अमन जी और हमारी टीम। सच में मैम, आपका जो आज की प्रेजेंटेशन थी, आपने तो सागर को गागर में भर दिया। इट वॉज रियली वंडरफुल सेशन, क्योंकि ये डाइट योगिक डाइट है, जो आयुर्वेदिक डाइट है, एंशिएंट टाइम से चलती आ रही है, लेकिन हम जैसे जैसे हम कह रहे हैं कि हम मॉडर्न हो गए, बहुत एडवांस हो गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम अपने जो रूट्स हैं उनको भूल रहे हैं। सो आज आपने रूट्स के साथ हमें मिलाया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपकी जो इतना आपने एनलाइटन किया हम सबको, उसके लिए आपका कोटि कोटि आभार है। तो ग्लोबल योग अलायंस की जो पूरी की पूरी टीम है, डॉक्टर गोपाल जी, डॉक्टर अमन मक्कर जी और सारे के सारे जो हमारे योग अलायंस के जो जितने भी हमारे ऑफिशियल्स हैं, डॉक्टर प्रेमचंद कश्यप जी यहाँ पे बैठे हैं, इनसे हमें हमेशा ही प्राउड रहा है, पहले भी है, अब भी है, हमेशा रहेगा। तो आप सबका ग्लोबल योग अलायंस की तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद कि आप सब लोग यहाँ पे आए। I'm so grateful to you all. Thank you so much for being with us. Thank you so much. The lecture was most balanced and nutritious. Thank Right, you so sir. much, ma'am. Yes, sir. Thank you so much. Thank you, thank you. कल को फिर मिलते हैं एक नई सुबह में, नई उमंग के साथ, खुशियों के साथ, प्यार के साथ। आप सबका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्ते।